انقرہ میں رجب طیب اردوان کی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترک صدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان خوشگوار انداز میں گفتگو ہوئی۔ پاکستانی عوام کے انتخاب پر خوش ہیں، آپ لیے آموں کا تحفہ لایا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، صدر اردوان نے تقریب میں آمد اور نیک تمناؤں کے اظہار پر محمد شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر مختلف ملکوں کے قائدین سے ملاقات، عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا علاقائی تعاون، خطے میں مربوط روابط اور مختلف شعبوں میں تعاون کی رفتار تیز کرنے پر زور۔ گزشتہ روز ترکی کے بڑے کاروباری گروپوں کے سربراہوں کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں زراعت، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری اور تجارت کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ رجب طیب اردوان نے تیسری مدت کے لیے ترکی کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ حلف برداری کی تقریب انقرہ میں گرینڈ نیشنل اسمبلی میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت 78 ملکوں کے سربراہوں اور مندوبین کی تقریب میں شرکت۔ صدر اردوان کی جانب سے نئی کابینہ کا اعلان۔ پاک فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس سازش کے اہم کرداروں کو بے نقاب ہونے کے ساتھ سزائیں بھی ملنی چاہیے۔ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ان کے مقدمات یقیناً آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جوہر آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ پرویز الہی ایک بار پھر گرفتار۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے سابق وزیر اعلیٰ کو پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا ہے۔ پرویز الہی نے گریڈ 17 کی 12 غیر قانونی بھرتیاں کی، فیل شدہ امیدواروں کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن۔ عوام کی سہولت کے لیے نادرا کا ایک اور اہم اقدام، آنکھوں کے ذریعے بایو میٹرک تصدیق کا نیا نظام آئرس متعارف کرا دیا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر میں نادرا کے 700 سے زائد مراکز پر متعارف کرایا جائے گا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت ہر شہری کی شناخت اب انتہائی محفوظ ہو گئی ہے۔ چیئرمین نادرا طارق ملک۔ بنو کے علاقے جانی کھیل میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی میں نائب صوبیدار غلام مرتضی اور حوالدار محمد انور شہید۔ افواج پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم، ISPR۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور پر دھاوا بولنے والوں میں سے ایک حملہ آور نوجوان شرپسند کے ہوش شربا انکشافات۔ شرپسند رئیس احمد کا تعلق ضلع شانگلہ سے ہے۔ توڑ پھوڑ اور شرنگیزی میں شامل مجرم کو قانون کی تحویل میں لے لیا گیا، شرپسند نے اپنے اعترافی بیان میں بتا دیا۔ انجمن تاجران لاہور کا شہدائے وطن اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ 9 مئی کو ہمارے گھر میں جو اشتعال انگیز واقعہ ہوا، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں انجمن تاجران کے وفد کی گفتگو۔ کیوں نہ پھر آسمان لہو روئے، شہدائے پاک فوج کے والدین کا جناح ہاؤس لاہور اور دیگر فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ کی شدید مذمت۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ انہوں نے اتنی جرأت کی کہ ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلا ڈالا۔ شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا اظہار افسوس۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کی جانب مسلمان، عیسائی، ہندو اور سکھ رہنماؤں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ وسیع تر قومی مفادات اور پاکستان کا حقیقی تشخص اجاگر کرنے کے لیے بحیثیت ایک کمیونٹی مل کر کام کرنا چاہیے، مسعود خان کا تقریب سے خطاب۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری، BSF کی گاڑی کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت پر راجوری میں احتجاجی مظاہرہ۔ مقبوضہ وادی میں بدنام زمانہ ایجنسیوں کی جانب سے حریت رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنان اور صحافیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ فیفا ویمن ورلڈ کپ کے آغاز میں 49 دن باقی، آکلینڈ نیوزی لینڈ میں ٹرافی کی رونمائی۔
ख़वातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप 20 जुलाई से 20 अगस्त तक खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इवेंट के मुश्तरका मेजबान होंगे। मेगा इवेंट में 32 ममालिक की टीमें शरीक होंगी। और वुमेन्स चैंपियन लीग, स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने 3 सालों में दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में बार्सिलोना ने जर्मन फुटबॉल क्लब वोल्फसबर्ग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से पैट्रिशिया गुरजारो ने 2 गोल स्कोर किए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात की। मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की के साबिक नायब वजीर आजम और MHP पार्टी के चेयरमैन दिलत महचुल्दी ने मुलाकात की। वजीर आजम ने सदर एर्दवान के हमरा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया कोसोवो के सदर जोसो उस्मानी के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने भी मुलाकात की। वजीर आजम ने बलोचिस्तान सिस्तान सरहद पर मार्केट के क़याम और ईरान के सदर से अपने हालिया मुलाकात के हवाला दिया। ईरानी नायब सदर से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बार्टर ट्रेड एक अच्छी पेशरफ्त है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा होगा। अंकारा में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्ज़ोयेव से भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई ताउन, खित्ते को राब्तों से जोड़ने और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन की रफ्तार को तेज़ करने पर बातचीत की गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान और उनकी अहलिया के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खुशियों में हमें शरीक किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दवान को कहा कि हम आप तमाम अहल खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को आमों का तोहफा भी पेश किया। उनका कहना था कि आधे आम आपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात पर सदर रजब तैयब एर्दवान और उनकी अहलिया बेसाख्ता मुस्कुरा दिए और शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दवान ने कहा कि मुझे इल्म है कि पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। सदर एर्दवान ने तकरीब में आमद और नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। रजब तैयब एर्दवान ने मुसलसल तीसरी बार तुर्की के सदर की जिम्मेदारियां संभाली। हलफ बर्दारी की तकरीब अंकारा में तुर्की की पार्लियामेंट में हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 78 मुल्कों के सरबराह और नुमाइंदे तकरीब में शरीक हुए। इस खबर की तफसीलात जानिए इकरामुल्लाह महसूद से। सदर रजब तैयब एर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी अंकारा में तुर्की की पार्लियामेंट में हुई। नौमुंतखब सदर पार्लियामेंट के अहाते में पहुंचे तो मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने उन्हें सलामी दी।
सदर रजब तैयब उर्दवान का ताल्लुक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से है। उन्होंने मुसलसल तीसरी बार 5 साल के लिए सदारत के ओहदे का हल्फ उठाया। Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şeref Atatürk's principles and reforms and the secular republic principle, I will not deviate from the ideal of everyone to benefit from human rights and fundamental freedoms and peace and welfare of the nation in the understanding of national solidarity and justice, that I will work with all my strength to protect and glorify the repute and honor of the Republic of Turkey and to fulfill my duty with impartiality. इससे कबल 2014 और 2018 में वो तुर्किया के सदर मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब उर्दवान की खुसूसी दावत पर हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत की। 21 मुल्कों के सरबराहान ममलिकत और 13 वज़ीर-ए-आज़म समेत दुनिया के 78 मुल्कों के मंदूबीन और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे भी हल्फबरदारी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीब में मौजूदगी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। हल्फबरदारी की तकरीब के बाद सदर रजब तैयब उर्दवान ने जदीद तुर्किया के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी। तुर्किया में होने वाले सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में रजब तैयब उर्दवान ने 52.18% वोट हासिल करके अपने हरीफ कमाल कलीजदार ओगलो को शिकस्त दी। तुर्की की 600 रुकनी पार्लियामान में भी सदर उर्दवान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया के बड़े कारोबारी ग्रुपों के सरबराहान से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में ज़राअत, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी और तिजारत की ज़रूरत को उजागर किया गया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल 31 मई को दोनों मुल्कों के दरमियान सामान की तरसील के तिजारती मुआहदे के फ़ाल होने के बाद बाहमी ताउन के बेहतरीन मौक़े सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 सालों में दो तरफ़ा तिजारती हजम को सालाना $5 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ काबिल हुसूल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा शराकत और नए मनसूबों के क़याम में तुर्की की कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी खुशाइंद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती महल में गैर मुल्की रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि उनकी क़यादत में तुर्किया आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा मौसर किरदार अदा करेगा। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। नौ मुंतखब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान सदारती महल पहुंचे तो रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया। सदर रजब तैयब उर्दवान ने तमाम मेहमानान गिरामी को रिवायती अंदाज में हाथ हिलाकर खुश आमदेद कहा। वो सदारती महल के ऐवान में मौजूद सरबराहान मुमलिकत से भी मिले। उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदारत का ओहदा संभालने पर तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान को पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद दी और इस यकीन का इजहार किया कि उनकी क़यादत में तुर्किया तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय करेगा। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी तुर्किया के सदर और खातून अव्वल को मुबारकबाद दी। तकरीब में तुर्कों के अमायदीन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने शिरकत करने वाले मंदोबीन को खुश आमदेद कहा। उन्होंने कहा कि तुर्किया तमाम दुनिया से बेहतरीन बाहिमी ताल्लुकात का ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि तुर्किया तरक्की और खुशहाली की राह पर अपना सफर इसी रफ्तार से जारी रखेगा। उन्होंने इस दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। Pakistan Başbakanı kardeşime özellikle NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum ve bütün bunlarla beraber तुर्कों की तारीख कबायली निज़ाम से शुरू हुई, फिर तुर्क सल्तनत की बुनियाद रखी गई। रजब तैयब उर्दवान तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब हुए हैं। सदारती महल में होने वाली तकरीब में 13 ममालिक के वज़राए आज़म और 21 ममालिक के सरबराहान समेत 78 ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
اور ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان کے حلف برداری تقریب کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکیہ کے نیشنل موومنٹ پارٹی کے صدر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ 9 اور 10 مئی کو پاک فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی سازش کی گئی۔ اس سازش کے اہم کرداروں کو بے نقاب ہونے کے ساتھ سزائیں بھی ملنی چاہیے۔ جوہر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ان کے مقدمات یقیناً آرمی ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ سیاست کے نام پر عوام اور فوج کو لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ لوگ سیاسی نہیں، سازشی ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ انہیں پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں گریڈ 17 کے 12 غیر قانونی بھرتیاں کی۔ فیل شدہ امیدواروں کو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بھرتی کیا گیا اور اس عمل میں جعلی ٹیسٹنگ سروس کی خدمات لی گئیں۔ بھرتیوں میں کرپشن کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ چلو میں اب اللہ کے کاموں میں اس ملک کی خدمت کر لوں۔ پی ٹی آئی والوں نے مجھے صوبیہ کا مال ہماری محلے میں رہتی تھیں، انہوں نے کہا کہ تم اتنا کام کرتی ہو تو تم پی ٹی آئی میں آ جاؤ، ممبر بن جاؤ۔ اس طرح میں ممبر بنی۔ میڈم یہ بتائیے کہ آپ کا لاہور کس علاقے سے تعلق ہے؟ ظاہر اس علاقے کا کوئی ایم پی ایم این اے ہوگا جن کو آپ جانتی ہوں گی۔ ویسے آپ نے کہا کہ آپ بغیر سفارش کی آئی ہیں، آپ کے علاقے کے ایم این ایم پی اے کے نام بتا سکتی ہیں اور آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ جس طرح آپ کی ظاہری شکل و صورت لگ رہی ہے، یو آر این مینٹل سٹریس، یا تو آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کوئی اور یعنی کوئی پریشر نہیں کہتا تو کوئی کیا وجوہات ہے؟ مطلب چپ کر کے انڈر گراؤنڈ چل جائیں۔ دیکھیں میری بات، دیکھیں آپ میری بات سنیں، اس وقت جو بھی ملک کے حالات ہیں ہر کوئی پریشان ہے، آپ سب بھی پریشان ہیں۔ سیکنڈلی آئی ایم ڈائبٹک، ٹھیک ہے، ہاں، اور یہ وجہ ہے، ظاہری بات ہے ڈائبٹک بندہ، اور یہ 5 سال کام کر کر کے میں شوگر ہے۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، پاکستان زندہ، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ دیکھیں میں اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، میں تو ویلفیئر کرنے والا بندہ ہوں، جو میرے پاس آ جاتا ہے اس کے میں کام کر دیتی ہوں۔ پی ٹی آئی کی سابق ممبر صوبائی اسمبلی عائشہ اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، خون خرابے والی سیاست پسند نہیں، اس لیے سیاست چھوڑ رہی ہوں۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہدائے پاک فوج کے والدین نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اس کے حوالے سے آپ اور دیگر فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھراؤ پر اظہار افسوس اور مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دل واقعی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انہوں نے اتنی جرت کی کہ ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلا ڈالا۔ یہ جو ابھی دیکھ کے سب رو رہے ہیں نا، تو یہ جس وقت اس پہ حملہ ہوا تو واقعی دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ انہوں نے اتنی جرت کی ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلانے کی۔ اللہ کریم ان کو خود ہی اس کی عبرتناک سزا دے گا انشاءاللہ۔ آج یہ جو حالت دیکھی ہے، جس کے لیے ہمارے بچوں نے جان دی ہے اور اس ملک کو سنبھالتے ہوئے چلے گئے ہیں، تو یہ جو ہمارے بندے انہوں نے یہ کیا ہے، مجھے آج اس سے بھی اور زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اور ناظرین انجمن تاجران لاہور نے شہدائے وطن اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو ہمارے قائد کے گھر میں جو اشتعال انگیز واقعہ ہوا اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ 9 مئی کو جو ہمارے گھر میں جو واقعہ ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہ جو بھی بدبخت تھے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ادھر آ کے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے نہ تو مسجد چھوڑی، اس کو بھی شہید کر دیا۔ انجمن تاجران
लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है, बहुत अफसरदा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ 9 मई के वाक़े की, और जो शोधा की बेहरमती की है इन्होंने, उस पर जितना भी गम गुस्से का इज़हार किया जाए वो कम है। 9 मई को सवात में जलाओ घिराव में मुलव्विस सैदो शरीफ कॉलेज के चौकीदार नवीद जहाज़ेब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीद बल्द एहसानुल्लाह निशात चौक पर आवाम को इश्तियाल दिलाने और फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाने में मुलव्विस था। मुतल्लिका महकमे के जरिए नवीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। 9 मई को जिन्ना हाउस लाहौर पर धावा बोलने वालों में से एक हमलावर नौजवान शरपसंद के होशरुबा इंकशाफात। शरपसंद रईस अहमद का ताल्लुक जिला शांगला से है। तोड़ फोड़ और शर अंगेजी में शामिल मुजरिम को कानून की तहवील में ले लिया गया है। शरपसंद ने अपने एतराफी बयान में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं रईस अहमद स्वात जिला शांगला का रहने वाला हूँ। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनसाजी शुरू हो गई, और इसी वजह से मैंने ये काम किया है। ननकाना साहब से PTI के साबिक टिकट होल्डर और साबिक MPA राय असलम खान खरल ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अपने वीडियो बयान में राय असलम खान खरल ने कहा कि PTI ने इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और पुरतशद्दुद वाक़यात में कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिन्ना हाउस पर हमले और जलाओ घराव के मुकदमे में गिरफ्तार 13 खवातीन को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। PTI की खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा समेत दीगर खवातीन को अदालत के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत से गिरफ्तार खवातीन के 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ सुनने के बाद गिरफ्तार खवातीन को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अबर गुल ने भी केस की समाअत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद बिरजेश ताहिर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अवाम की सहूलियात के लिए फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हल्का भर में जारी बड़े मंसूबे और राब्ता सड़कों की तकमील उनका वाज़ेह सबूत है। सांगला हिल में रेलवे अंडरपास के इफ्तिताह पर चौधरी मोहम्मद बिरजेश ताहिर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नवाज शरीफ के जारी बड़े मंसूबों को रोककर आवाम के हुकूक पर डाका डाला। उन्होंने कहा कि रेलवे अंडरपास से मुज़ाफ़ाती इलाकों के लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। मुल्क भर से अवाम और रहनुमाओं की तरफ से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत जारी है। मुस्लिम लीग के मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नाम पर जो तबाही और बर्बादी की, तारीख इसकी गवाह है। ये काम दुश्मन मुल्क भारत भी नहीं कर सका। PTI से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी यादगार को तबाह किया गया है, वो शर्मनाक अमल है। PTI ने जिन्ना हाउस, रेडियो पाकिस्तान, पेशावर, MM आलम के जहाज़ और कर्नल शेर खान शहीद की यादगार पर हमला करके भारत को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। बनू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान भावलपुर के रिहायशी नायब सूबेदार गुलाम मुर्तज़ा और सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले हवलदार मोहम्मद अनवर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR एलामिये में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है और बहादुर सपूतों की कुर्बानियां इस कौमी अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान की जानिब से मुसलमान, ईसाई, हिंदू और सिख रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। मसूद खान ने तकरीब में मजहबी और कम्युनिटी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत का मजबूत रिश्ता हम सबको यकजा करता है। हमें वसी तर कौमी मफादात और पाकिस्तान की हकीकी इमेज के लिए बहैसियत एक कम्युनिटी इज्तिमाई तौर पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान से कौंसिल के सरपरस्त आला सरदार रमेश सिंह खालसा ने
इस मौके पर कहा कि अक़लियतों के हुकूक और उनके मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुवाफ़िक़ फ़िज़ा फराहम की है। तकरीब के दीगर शुरका ने भी इज़हार ख्याल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से ज़ालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फोर्सेज ने रऊनत का मुजाहरा करते हुए राजौरी में एक नौजवान को गाड़ी से कुचल डाला। BSF की गाड़ी ने मोहम्मद साकिब मलिक को मोटरसाइकिल को दानिस्ता तौर पर टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। नौजवान अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मोहम्मद साकिब मलिक की शहादत के खिलाफ लोगों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। नौजवान के अहले खाना, रिश्तेदार और अहले इलाका ने मैयत कलर चौक में रखकर जम्मू राजौरी पूंछ शाहराह कई घंटों तक ब्लॉक रखी और गाड़ी के ड्राइवर समेत फौजी एहलकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सियासी माहिरीन और कश्मीर पर नजर रखने वालों ने श्रीनगर में अपने इंटरव्यूज में कहा कि भारतीय फोर्सेज की जालिमाना कार्रवाइयों का मकसद उन लोगों को खौफजदा करना है जो भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर मुखालिफ जालिमाना पॉलिसियों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए अपनी बदनामी जमाना एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, चीन के वज़ीर दिफा ली शांगफो ने कहा है कि एशिया पैसिफिक में नेटो जैसा इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें इलाकाई ममालिक को अगवा करने और तनाज़ात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का एक तरीका है जिससे यह खित्ता तनाज़ात के भंवर में आ जाएगा। सिंगापुर में एशिया के सिक्योरिटी इजलास से खिताब में चीनी वजीर दिफा का कहना था कि आज के एशिया पैसिफिक को खुले और जामा ताउन की ज़रूरत है। इसे छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम नहीं होना चाहिए। चीनी वजीर दिफा ली शांगफो का यह भी कहना था कि एशिया बहरुल कायल के इलाके में सर्द जंग वाली सोच दोबारा उभर रही है और उनका मुल्क महाजराई से मुतालिक बातचीत करना चाहता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क के कर्जों की हद बढ़ाने से मुतालिक मंजूर शुदा बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अमरीका के दिवालिया होने का खतरा टल गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक सदर जो बाइडन ने इस कानून साजी में शराकत दारी पर कांग्रेस के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। रिपब्लिकन्स ने अखराजात में कमी तक मुल्क के कर्ज लेने की हद बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तातुल पैदा हो गया था और उसको दूर करने के लिए व्हाइट हाउस और ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी के दरमियान कई हफ्ते तक मुज़ाकरात जारी रहे थे। ईरानी बहरिया की कमांडर शहराम ईरानी का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के साथ साथ 3 दीगर खलीजी ममालिक एक बहरी इत्तेहाद बनाने का इरादा रखते हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि खित्ते के ममालिक ने आज ये समझ लिया है कि सिर्फ एक दूसरे के साथ ताउन ही इलाके में सलामती की जमानत हो सकता है। उनका कहना था कि ये इत्तेहाद जल्द तश्कील दिया जाएगा। नेवल कमांडर शहराम ईरानी का कहना था कि जो रियासतें इस इत्तेहाद में हिस्सा लेंगी उनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, इराक, पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। यूक्रेन के शहर दिनेप्रो पर रूस के मिसाइल हमले में 5 बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुकामी गवर्नर के मुताबिक 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमले में 2 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि मलबा हटाने का काम जारी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जारी बयान में आम शहरियों की हलाकतों को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक दहशतगर्द रियासत है। मॉस्को ने आम शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की है। युगेंडा के सदर ने सोमालिया में गुज़श्ता हफ्ते फौजी अड्डे पर अस्करियत पसंद तंजीम अल शबाब के हमले में अमन मिशन में शामिल युगेंडा के 54 फौजी एहलकारों के हलाक होने की तस्दीक की है। युगेंडा के सदर ने दावा किया है कि हमले के बाद युगेंडा की फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फौजी अड्डे पर दोबारा कब्जा कर लिया। अल शबाब तंजीम ने 26 मई को दारुल हुकूमत मोगादिशु के शुमाल में वाक़ मोसागावा में फौजी अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए 137 एहलकारों को हलाक करने का दावा किया था। जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े बरसाती जंगल अमेज़न की बहाली की कोशिशें जारी हैं, ताहम माहौलियाती ग्रुपों को कई चैलेंजेस का सामना है। फंड्स की कमी, शदीद तरीन मौसम और ज़मीनों पर कब्जे जैसे मसाइल जंगल की बहाली की राह में बड़ी रुकावट हैं। मसाइल के बावजूद गैर मुनाफा बख्श तंजीमें अमेज़न की बहाली के लिए पुरज़्म हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान जंगल में करोड़ों नए पौधे लगाए जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेज़न के जंगलात ज़मीन के फेफड़ों की हैसियत रखते हैं। बड़े पैमाने पर शजरकारी और जंगलात की बहाली से ग्लोबल वार्मिंग के खतरात को कम करने में मदद मिलेगी। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के किसान पैकेज से ज़राई शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इसी हवाले से सैलाब के बावजूद मुल्क में गंदम की पैदावार इसका मुंह बोलता सबूत है।
पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी 60% से ज्यादा आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता ज़राअत से मुंसलिक है। मजमूई मुल्की पैदावार का ज़राई शोबे में हिस्सा 18% है, जबकि ये मुल्क की 40% आबादी को रोजगार फराहम कर रही है। हुकूमत ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई समेत किसानों के लिए मयारी बीज, पानी के मौसर इस्तेमाल और कर्जों की फराहमी को यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का किसानों के लिए 1800 अरब रुपए का पैकेज ज़राई शोबे में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इस पैकेज के तहत किसानों को रियायती निर्खों पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जिनमें गुज़श्ता सालों की निस्बत 400 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। कर्जों पर मार्कअप के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस पैकेज का हिस्सा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के किसानों को रियायती निर्खों पर बीज की फराहमी समेत कर्जों पर 10 अरब रुपए से जायद मुनाफे की छूट दी गई। नौजवानों की ज़राई शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई और इस मकसद के लिए कर्ज की मद में 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पैदावारी लागत में कमी के लिए सोलर ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल एक और अहसन कदम है जो यकीनन पैदावार में इजाफे का बायस बन रहा है। हुकूमत की तरफ से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा और किसान पैकेज के तहत रियायती निर्खों पर कर्जों की फराहमी, मयारी बीज और खादों के कंट्रोल रेट से रवां साल मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा रही। माजी की हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी की वजह से दीगर शोबों समेत ज़राअत भी मुतासिर हुई और पाकिस्तान को अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ती थी। बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर पैदावार मौजूदा हुकूमत के बरवक्त फैसले, बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत का हदफ मुल्क की जरूरियात को पूरा करके गंदम बरामद करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कपास और चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए किए गए इक़दामात के तौर पर पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर से ज़राई माहिरीन, ग्रोअर्स और डीलर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसील बता रहे हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे कुलज़ुम बशीर अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर कपास, धान व दीगर फसलों के बीजों की सेल प्रमोशन के मौजू पर पंजाब सीड कॉरपोरेशन पीरोवाल खानेवाल में सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से ज़राई माहिरीन, ग्रोअर्स और डीलर्स ने शिरकत की। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शमशाद असगर वड़ाए, डॉक्टर कौसर मलक, आफ्ताब अहमद खिची, आमिर सोहेल भट्टी और नवीद असमत कालू ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि काश्तकारों को बेहतर पैदावार के हसूल के लिए म्यारी व तस्दीक बीज की फराहमी के लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने महकमा ज़राअत के बाहमी तावन से एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तरतीब दिया है, जिसके तहत बुनियादी बीज से तस्दीक शुदा बीज की अफजाइश पर 1994 मिलियन से मंसूबा पर अमल दरामद किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि तस्दीक शुदा बीज काश्तकार की खुशहाली और मुल्की तरक्की का जामिन है। पंजाब सीड कॉरपोरेशन मुख्तलिफ फसलों के तस्दीक शुदा और म्यारी बीज चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को फराहम कर रही है। बेसहारा और अपने घर वालों के जालिमाना रवैयों के शिकार बुजुर्ग अफराद के लिए मुल्तान में कायम ओल्ड एज होम में बेहतरीन रिहायशी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे फरहान मिर्जा अपनी रिपोर्ट में। आंखों में उम्मीद के दिए रोशन किए ये उम्र रसीदा बुजुर्ग मर्द व खवातीन आज भी मुंतजिर हैं अपने उन प्यारों के, जिन्होंने इन्हें इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। फिक्र और सोच के गर्दाब में घिरे ये बुजुर्ग अफराद मुल्तान के ओल्ड एज होम में मुकीम हैं। इन्हें वो तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं जो किसी भी शख्स को अपने घर में मुयस्सर होती हैं, लेकिन औलाद की बेवफाई और धुतकारे जाने का गम हर चेहरे पर अयां है। बेटे रखते हैं लेकिन बहू नहीं रखती। अब बेटे मजबूर है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। करोड़ों पति होके मैं रोड पे आ गई हूँ, सब कुछ से मैं फारिग हूँ। बहू ने ना बहुत मेरे साथ ज्यादती की है। मेरा अब मैं जाऊँ ना, मुझे पूछती भी नहीं है, कहती आई क्यों है।
बहू बेटे अजीजो कारिब के संगदिलाना रवैये का शिकार 60 साल से जायद उम्र के हामिल इन बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में अच्छी खुराक के साथ साथ निसाबी सरगर्मियों की सहूलत फराहम की गई है। एक दूसरे का गम बांटने के लिए कैरम खेलते ये बुजुर्ग मुस्कुराते चेहरों के साथ कुछ वक्त के लिए अपना गम भूल जाते हैं। सहूलियात वगैरह हैं माशाअल्लाह, वो हमें जो घर वालों ने नहीं दी थी वो इससे भी बेहतर हमें मिल रही है। माहौल अच्छा पाया है, सब चीज अच्छा पाया है। बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी, टीवी रूम, डॉक्टर और हजाम समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। पर्दा और चार दीवारी का तकद्दुस बरकरार रखते हुए खवातीन के लिए दूसरी मंजिल पर रिहाइश का बंदोबस्त है। बुजुर्गों से मोहब्बत और उनका एहतराम हमारा मजहबी और इखलाकी फरीजा है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और नाज़रीन, नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम यानी IRS को मुतारफ करवा दिया है। नए निज़ाम में गलती का इम्कान ना होने के बराबर है। तफसील रिजवान आरिफ से। नादरा ने अपने मुख्तलिफ मराकज़ पर आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का काबिल एतबार निज़ाम IRS मुतारिफ करा दिया है, जिसकी बदौलत शहरियों की शनाख्ती मालूमात में दोहरे इंदराज के किसी भी इम्कान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद मिलेगी। IRS निज़ाम को उंगलियों के निशानात और चेहरे की शनाख्त के मौजूदा निज़ामों के साथ इस्तेमाल में लाया जाएगा। नादरा हेडक्वार्टर्स में आजमाइशी तजर्बे के बाद अब इस निज़ाम ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में वाक़ नादरा मेगा सेंटर्स में काम शुरू कर दिया है और मरहला वार इस प्रोग्राम को मुल्क भर के मराकज़ पर मुतारिफ कराया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि शनाख्त के इंतहाई आला मेयार पर मबनी इस निज़ाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत किसी भी शहरी की शनाख्त अब इंतहाई महफूज हो गई है। चेहरे की शनाख्त, उंगलियों के निशानात और IRS के जरिए शनाख्त के तीनों निज़ामों के एक साथ इस्तेमाल से शहरियों की शनाख्ती मालूमात में किसी भी गलती या जालसाजी का इम्कान ख़त्म हो जाएगा और नादरा इंतहाई दुरुस्त तरीके से इसकी तस्दीक कर सकेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी अरब में पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज़मीन हज को अरफात, मुज़दलिफ़ा, मना और जमरात में रहनुमाई के लिए मुआवनीन की तरबियत का अमल जारी है। तफसीलात जानिए राना फ़हीम असलम की इस रिपोर्ट में। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मा लना रब्बुन सिवा। 3000 मुआवनीन को मिना, जमरात और मुज़दलिफ़ा में रोज़ाना की बुनियाद पर तरबियत फराम की जा रही है। वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से तैनात होने वाले मुआवनीन के लिए तरबियत का एहतमाम किया गया है। तकरीबन ये 3000 के करीब अदद बनता है जो कि लोग मुआवनत करते हैं मिना मूव में और हज के दिनों में। हमारा SOP ये है कि हर सुबह फजर की नमाज पढ़ के हम लोग 40-40, 50-50 या 60-60 का बैच लेके इनकी मिना मूव की तैयारी करवाते हैं। आज़मीन अयाम हज के दौरान रास्तों और खैमों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखें ताकि मनासिक हज पर मुकम्मल तवज्जो दे सके। यह इनको आगाही दी जा रही है मुआविनीन को कि उन पॉइंट्स पर खड़े होंगे, उन जगहों पर खड़े होंगे जहां हमारे हाजी मुड़ना होगा, जहां पर उनको ज़रूरत होगी, जहां पर पानी होगा और जहां पर यह है कि यहाँ के कानून के मुताबिक अगर रश हो जाता है तो वो रास्ता बंद कर देते तो कौन सा मुतबादिल रास्ता है। मीना में पाकिस्तानी आज़मीन को सेहत की मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के लिए हज मेडिकल मिशन भी तरबियत मुकम्मल कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमने पाकिस्तान से भी हाजी कैंप से शुरू की थी और उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनको सेहत और अफजान सेहत के असूलों से आगाही दें। माशाअल्लाह हज के दौरान जो उनकी सेहत के हवाले से चीज़ें होगी वो अभी से हम उसको रहनुमाई कर रहे हैं। अयाम हज के दौरान आज़मीन को हर तरह की सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ारत मज़हबी उमूर दिन रात कोशां है। पाकिस्तानी मुआवनीन की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और वो आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। राना फ़हीम असलम, PTV न्यूज़, मिना, मक्का मुकरमा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के चौधरी लतीफ़ अकबर ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में 14वें स्पीकर की हैसियत से हलफ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज ने नौमंतखब स्पीकर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली सेक्रेटेरिएट हॉल में हुई। चौधरी लतीफ़ अकबर सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और कई अहम वजारतों के अलावा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 121 शेखुपुरा के देही इलाकों में गैस फराहमी के मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने यूनियन कौंसिल गाजी मीनारा के 6 नवाही आबादियों को गैस की फराहमी के मंसूबों का काम के आगाज किया है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इस्लाम गाजी।
कुदरती गैस मौजूदा दौर में अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। इसकी कदर का अंदाजा उन इलाकों में लगाया जा सकता है जहाँ ये मुयस्सर नहीं, और इन इलाकों में ईंधन का हसूल मर्दों खवातीन के लिए एक मुश्किल काम होता है। शेखुपुरा की यूनियन कौंसिल गाजी मनारा की मुल्हिक आबादियाँ जिनके मकीनों के लिए गैस का हसूल एक ख्वाब था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर मियाँ जवेल लतीफ इन आबादियों के हजारों मकीनों की आवाज बने और अहले इलाका का देरीना मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाया, जिन्होंने फौरी तौर पर इन इलाकों को गैस फराहमी की मंजूरी देते हुए मंसूबे पर काम शुरू करने के अहकामात दिए, जिस पर वफाकी वजीर ने मुख्तलिफ आबादियों में जाकर गैस फराहमी मंसूबों पर काम का इफ्तिताह किया और अहले इलाका को मुबारकबाद दी। मैं समझता हूँ कि ये कोई एहसान नहीं होता, आप अल्लाह की रहमत उसकी नुसरत के बाद जब किसी का इंतखाब करते हैं तो कोई वो काम डेवलपमेंट का करवाता है तो अपने पास से नहीं करवाता, ये आपके पैसे होते हैं जो आप पर खर्च करने की अल्लाह उसको तौफीक देता है। अहले इलाका ने कई दहाइयों बाद गैस फराहमी के मंसूबे पर काम के आगाज पर खुशी का इजहार किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत मियाँ जवेद लतीफ का शुक्रिया अदा किया। कोई सोच नहीं सी कि इत्थे तो गैस पहुंचेगी, जिहड़ी अज मियाँ जवेद लतीफ की कोशिशां नाल सारा काम अज इंशाअल्लाह ताला दा इफ्ताह हो रहा। नून लीग का खुसूसन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मियाँ जवेद लतीफ, इनकी काविशों से हमारे इस पसमानदा इलाके में सुई गैस की सहूलत इस गरीब आवाम को मुयसर आई है। हम इनके बहुत मशहूर हैं। बहुत साड़ा ही ख्वाब सी इस गल का मियाँ साहब ने पूरा करता। ये सिर्फ नून लीग काम कर सकती है और कोई भी नहीं करता। ये जवेलती साहब का शुक्रिया अदा करने जी, असीं उन्हें साडे पिंड गैस का इफ्तिताह किया जी। गैस का सानू बड़ी जरूरत सी, साडे महल्ले च बीबियां नू गोए बालन लभना बहुत औखा काम सी। यूनियन कौंसिल गाजी मनारा के डेरा जात के लिए गैस फराहमी के मंसूबे पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी और ये 2 माह में मुकम्मल होगा। दूर दराज के देहाती इलाकों में गैस फराहमी का ये मंसूबा अहले इलाका की मुश्किलात के खात्मा के साथ उनकी जिंदगी में खुशहाली की नवीद साबित होगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। और नाज़रीन, पीर महल की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जहूज सहूलियात से आरास्ता ऑपरेशन थिएटर फाल कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नुमान चौधरी। 4 लाख से जायद की आबादी पर मुश्तमिल तहसील पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को सहूलियत से आरास्ता कर दिया गया। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया। पीर महल की आबादी 4,80,000 या इससे भी ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और रोजाना की बुनियाद पर माहिर डॉक्टर सर्जन की मौजूदगी में ऑपरेशन हो रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर में गायनाकोलॉजिस्ट समेत दीगर ऑपरेशन के लिए DHQ टोबा टेक्सिंग रेफर किया जाता था। पंजाब हुकूमत की कोशिश और मुखय्यर हजरात के तावन से तहसील भर के मरीज सहूलियत से मुस्तफीद हो रहे हैं। पहले हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पड़ता था, अब तहसील हेडक्वार्टर में हम करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा तामन कर दिया। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल में महंगे दामों ऑपरेशन करवाने की बजाय सरकारी अस्पताल में इस सहूलियत को बहाल करना अहसन इकदाम है। तहसील हेडक्वार्टर पीर महल में ऑपरेशन थिएटर का बहाल होना एक अहसन इकदाम है जिससे लाखों लोग मुस्तफीद होंगे। मोहम्मद नुमान चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर महल, टोबा टेक्सिंग। नाज़रीन, डेरा बुगटी में सैलाब से मुतासर इलाकों में 5 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में 2000 से ज़ायद अफराद का इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 5 साल तक के बच्चों को 12 खतरनाक अमराज से बचाव के लिए हिफाजती टीके भी लगाए गए। शहरियों ने पसमानदा इलाकों के अवाम को घर की दहलीज पर इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी को सराहा। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए रनवे की तामीर के बाद आज रात PIA की पहली परवाज ने कामयाबी के साथ लैंडिंग की। सिविल एविएशन हुकाम ने परवाज के अमले का इस्तकबाल किया। सिविल एविएशन ने एक और संगे मील उबूर किया जब रनवे की तकमील के बाद कोयटा से 2 हज परवाजें 300 हुज्जाज कराम को लेकर मदीना के लिए रवाना हुई। मंडी भावदीन में मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर अमली मशकों का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर मंडी भावदीन शाहिद इमरान मार्थ ने अमली मशकों का मुआयना किया और सैलाब से निपटने के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने डूबते शख्स को निकालने के लिए रेस्क्यू के गोताखोरों की अमली मशक का भी मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कामयाब अमली मशकों के इनेकाद पर मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के अजला महमद और खैबर में जैतून की काश्त का आगाज़ हो चुका है। मुहिम का मकसद पाकिस्तान में जैतून की काश्त को तिजारती पैमाने पर फरोग देना है। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अख्तर।
सिक्योरिटी फोर्सेस के तावन से महकमे ज़राअत खैबर पुख्तनख्वा ने कबायली अजला ममंद और खैबर में मजमूई तौर पर 2200 से ज़्यादा जैतून के दरख्त लगाए हैं, जबकि 5000 से ज़्यादा जंगली जैतून के दरख्तों की पेवंदकारी भी की है। शजरकारी मुहिम के तहत ज़िला खैबर के इलाके तीरा में अतालवी अकसाम के तकरीबन 1000 पौधों की पेवंदकारी भी की जा रही है, ताकि आने वाले सालों में इसकी पैदावार को बेहतर बनाया जा सके। कबायली अजला में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जैतून की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए जंगली जैतून की पेवंदकारी भी मुहिम का हिस्सा है। ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि बेहतर मौसमी हालात में पेवंदकारी के जरिए जैतून की पैदावार को बढ़ाना जरूरी है, जिस पर तेजी से काम जारी है। इससे कम मुद्दत में बेहतर नताइज हासिल किए जा सकेंगे। तहसीलों में मुख्तलिफ एरिया में और ज़्यादातर बॉर्डर के एरिया में हमने वहाँ पर सर्वे कर लिया और वहाँ पर हमने वाफर मकदार में जो जैतून की वाइल्ड आले मौजूद थे उसमें हमने उसको आइडेंटिफाई किया। बाद में हमने जाकर उसमें हमने ग्राफ्टिंग कर लिया, तो ग्राफ्टिंग का जो रेश है वो इंतहाई कामयाब रहा। वादी तीरा में सैकड़ों की तादाद में जैतून के जंगलात हैं जिनकी देखभाल की जा रही है ताकि इनकी हिफाजत की जा सके। इस इलाके में नौजवानों को मुस्तकबिल में रोजगार के वसीअ मौके मिलेंगे। जैतून के जंगलात के ग्राफ्टिंग के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ अहम किरदार अदा कर रहा है। जैतून शजरकारी मुहिम को सराहते हुए मकामी शहरियों का कहना है कि जिला ममंद और खैबर की जमीन जैतून की काश्त के लिए मौजू है। अगर हुकूमत की तरफ से इकदामात का ये सिलसिला जारी रहा तो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान जैतून की पैदावार में खुद कफील बन सकता है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, जुनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड, दालबंदीन 43, तुरबत 44, मिट्टी में 43, जबकि टंडो जाम में भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।